सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम पीयूष जिंदल है। पंजाब पुलिस ने इस बार कसम खा ली है भी ਜਿਹੜਾ भी कोई अनएम्प्लॉयड नौजवान है, ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सब इंस्पैक्टर ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ in the rank of constable in intelligence cadre of Punjab Police and constable in Punjab Police investigation cadre। ठीक है जी, इंटैलीजेंस ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੋਸਟਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ online applications available on this website are invited from Indian citizens for direct recruitment to fill vacancies of intelligence assistant in the rank of constable and intelligence cadre and constables in investigation cadre except for the vacancies of in the support quota। ठीक है, support quota नहीं है। तो उस बाद देखो, recruitment for the filling up vacancies in two cadres as mentioned above shall be carried out through a common application form। एक कोई टेस्ट होगा, अलग अलग पोस्टां का अलग अलग टेस्ट नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रोसेस फॉलोड बाय फिजिकल टेस्ट। ठीक है, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੂਗੀ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 818, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। पोस्ट रिजर्व फॉर स्पोर्ट पर्सन 24 ने जी। बैलेंस ਜਿਹੜਾ बच गया जी 794। ਤਾਂ 794 ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 794 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਪੋਸਟਾਂ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲਈ 82, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ EWS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੂਮਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ 373 ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। 8-900 ਪੋਸਟਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 400 ਪੌਣੇ 400 ਪੋਸਟਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 11 ਪੋਸਟਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੇ ਨੇ 362। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 151 ਪੋਸਟਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 43 ਤੇ EWS ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 27 ਤੇ ਵੂਮਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ 1 ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੈ। द नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है जी। द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पोस्ट दिता है जी, एंड शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह दिता है, एक्स सर्विसमैन ने दिता है। एंड उस तो बाद दे विच जो भी इन्होंने एक्स वगैरह दिते हैं रिजर्वेशन वाले दिता है जी। पे स्केल की गल कर लीए, ठीक है जी, 19,900 है जी मिनिमम पे स्केल। 7वां लैवल 2 होएगा जी। ठीक है, 7वें पे कमीशन के हिसाब नाल लगेगा जी। ठीक है। एंड उस तो बाद दे विच अगर आप गल करिए, हाँ जी ठीक है, नैक्सट चलते हैं एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है जी, आप देख लेने नैशनलिटी इंडिया होनी चाहिए है जी। एज देख लेने, क्योंकि सब इंस्पैक्टर के कांस्टेबल के डिफरेंस सीगा, एक दे विच 20 तो 28 मंगी सी, 21 तो 28 मंग ली। ठीक है, हैड कांस्टेबल ये देखते हैं कितनी मंगी है 21 साल, ये भी 21 तो 28 है, ध्यान रखना। सब इंस्पैक्टर की 20 तो 28 सी, ये भी 21 तो 28 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कांस्टेबल की 21 तो 28 मंग रहे हैं जी। ठीक है, फिर रिलैक्सेशन बारे दसिया जी। उस बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेने जी। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होंगे ने, तो तुम एक बार ध्यान नाल देख लियो। इंटैलीजेंस असिस्टेंट है जिहड़ा, ठीक है, इंटैलीजेंस कैडर है जी। ये जी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज केस में बी प्रोवाइडेड सच दैट कैंडिडेट शैल आल्सो पोजेस O लेवल सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, अर्लियर कॉल्ड DOEACC। ठीक है, तो ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी तो होवे, ग्रेजुएशन बेस्ड है तो O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद कंप्यूटर और साइंस ਜਿਹੜਾ सब इंस्पैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ग्रेजुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने मैसेजेस आए कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की कर रहे हैं, मैकेनिकल की कर रहे हैं भी सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तीसरे या 5वें ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਇੰਟਾਇਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, मतलब हर ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ O ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इंटेलिजेंस वास्ते लोड है जी और कंप्यूटर दी, इन्वेस्टिगेशन वास्ते कोई कंप्यूटर की लोड नहीं है, ठीक है जी, साफ लिखा है। नेक्स्ट है जी हुण एक ग्रेजुएशन कदों होनी चाहिए, ऑन और बिफोर द क्लोजिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। 16 अगस्त ਦਿੱਤਾ, 16 अगस्त तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਨ 10ਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10th। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 5.5 ਫਿਟ 5.5 ਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜੀ 5.1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਫਿਟ 1 ਇੰਚ, ਸੌਰੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ 5 ਫਿਟ 5 ਇੰਚ, ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜੀ 5 ਫਿਟ 1 ਇੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सिलेक्शन प्रोसैस की होएगा जी, पहला टेस्ट होएगा, उस बाद दूसरा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे जी, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होएगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा। स्टेज 1 की है जी, सिलेबस तुसीं पढ़ लो, ध्यान नाल देख लो की लिखा है, देख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसैस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, पंजाबी ते इंग्लिश दोवां दे विच होएगा। स्पैशल मैंशन किया, बहुत सारे स्टूडेंट बात पूछते होंगे ने। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी, कोई भी तुहानू डाउट आंदा है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और आंसर, देयरफॉर द इंटरप्रिटेशन ड्रॉन बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्जन शैल बी प्रिवेल, ठीक है। इंग्लिश वाला ही मन्ना जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाली दी जाएगी, साफ लिखा है, ठीक है जी। अगर कोई भी थोड़ी इंटरप्रिटेशन माइंड दे विच गलत हो गई है, तुसी होगी, वो इंग्लिश वाले नूं चक्कणगे, ओनू ही रेफरेंस मनणगे, ठीक है जी। देख लो, ध्यान नाल लिखा है, ठीक है। उस तो बाद दे विच सिलेबस देख लो जी, ते इन्हां ने दिता है 40 नंबर की थोड़ी GS है जी, ठीक है। टोटल ये 3 घंटे का पेपर होएगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे जी 150 ते कितने मार्क्स, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा ते 3 घंटे का पेपर होएगा, जिहदे विचों 40 नंबर की GS है जी, 30 नंबर का कंप्यूटर है एंड 30 नंबर की थोड़ी रीजनिंग आ गई जी। ये इन्होंने DI मैंशन नहीं की, लेकिन मैंसुरेशन मैंशन किया है। तो SI दे विच जिवें इन्होंने मीन मोड मीन मैंशन किया सी, वो भी नहीं है। तो ये एथिक्स वाला है वो भी नहीं मैंशन किया, नॉर्मल है जी, ठीक है। तो करंट अफेयर का सप्लीमेंट असीं बहुत वधिया बनाया हुआ है। लीगल पेपर च भी पेपर, लीगल दे विच भी पेपर पिया उहदे विचों, ते लाइब्रेरी च भी शायद पेपर पिया उहदे विचों। तो वधिया 20 पेजां दा असीं बनाया जी, स्टूडेंट्स उह पढ़ सकते हैं इलैक्ट्रिक इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके, ठीक है जी। तो जिहड़ा बैच संकल्प बैच असीं दे रहे हैं जी, सेम सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है, वो कर लोगे, मोर दैन सफिशिएंट है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर की है जी, रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल ऑड वन आउट, सारा कुछ देखो बैंकिंग वाला सिस्टम पान लगे, लेकिन लैवल घट होएगा। ये भी असीं प्रैक्टिस करावांगे, ये भी जो सुपरडेंट बैच स्टार्ट किया इंग्लिश का, वो ये सारी चीज़ां भी करावांगे, ठीक है जी। तो इंग्लिश की जी किताब है तुसीं वो फॉलो कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ने कितों होर कोचिंग लेती है, उन पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो है 300 रुपये की किताब तुसीं किसी भी शॉप बुक सैलर तो जाके पता कर सकते हो, नहीं मिलती तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ठीक है जी। एंड पंजाबी लैंग्वेज 10 नंबर की है जी, सेम कॉम्प्रीहेंशन पैसे ईडीएम वगैरह। उस तो बाद है जी कंप्यूटर, ठीक है जी। कंप्यूटर 3 नंबर का बेसिक कंप्यूटर होगा जी, ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। नोट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन इज द फॉर्मेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर से पेपर होगा जी। तो एक स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, जिहदे प्रेसी राइटिंग मैंशन है, कॉम्प्रीहेंशन मैंशन है, देखते हैं प्रेसी राइटिंग है या नहीं है। प्रेसी राइटिंग नहीं है जी, ये प्रेसी राइटिंग नहीं है, ठीक है। सब इंस्पैक्टर है, सब इंस्पैक्टर के स्टूडेंट्स कहते फिर प्रेसी राइटिंग की सानू लिखना पऊगा, नहीं, उत्ते मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आएंगे, बहुत ईजी होएगा कि भई आ पैरा दिता है, पैरे चो सिट्टा कट के दसो, सिट्टे ते 4 ऑप्शन दिते होंगे, तुहानू पता चल जाएगा भी वो की कहना चाह रहा ऑथर, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, देयरफॉर द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट शुड नोट दैट एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑन डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अलग अलग होएगा, दिन दे विच होएगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होएगी, सिंपल जी गल है। ईच कैंडिडेट शैल बी इशूड एडमिट कार्ड, ठीक है जी। तो उन्होंने साफ साफ किया भी अपना लैके जाना है उत्थे कुछ ना कुछ। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब 150 तो 150 क्वेश्चन करके आने जी, ठीक है, 3 घंटे के विच। नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला देता, ठीक है जी। उस तो बाद इन्होंने आंसर की एंड ऑब्जैक्शंस, तो 50 रुपये जो मंगते लेंगे ने जी, वही लैणगे, ठीक है जी। अलर्ट्स वगैरह थोड़े जो पेपर की डेट वगैरह होएगी वो फोन पर आएगी, ठीक है।
एसएमएस ये इंपॉर्टेंट डेट आएगी, उस तो अलावा होर कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, बस यही चीज़ दी हुई है, ये तो बाद की गल्लां ने जी। ठीक है, एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट ये देख लो जी एक बार, मिल जाएगी जी 800 मीटर भजना जी 4 मिनटों के एक चांस, लॉन्ग जंप 2.75 मीटर जो हैड कॉन्स्टेबल के सेम है शायद 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 0.90 मीटर 3 चांस, एक्स सर्विसमैन लिए 800 मीटर जो है रन या वॉक 6 मिनटों के एक चांस मिलेगा, फीमेल लिए है जी 400 मीटर 2 मिनटों एक चांस, लॉन्ग जंप है जी 1.80 मीटर 3 चांस, हाई जंप है जी 0.75 मीटर 3 चांस। ठीक है जी, उस तो बाद कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू इवेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद की गल है, इंपॉर्टेंट ओबवियसली नोटिफिकेशन है लेकिन तुम पढ़ सकते हो। ठीक है जी, एंड मैरिट लिस्ट दैट्स इट। मैडिकल एग्जाम डेट आई एम सर्चिंग फॉर, एग्जाम डेट दी होगी कि फीस जी फीस है जी 1000 रुपया जी जनरल वास्ते, एंड SC वास्ते है जी 400, एंड अदर स्टेट बैकवर्ड क्लासेस वगैरह वास्ते है जी। ठीक है, एंड 550, एंड EWS वास्ते है जी 550। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना देख के भर सकते हैं जी कि कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो। तो जोड़े होंगे जी ये कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल होएगा, ये वाली वैबसाइट पर। ठीक है, 26 तरीक तो होएगा, तुम पहले दिन भरना स्टार्ट कर देना जी अपना। ठीक है, एग्जाम डेट इन्होंने फॉर्मेट वगैरह दिता है, फोटो देनी है, सिग्नेचर देना, की साइज़ होना चाहिए, तुम पढ़ लेना अपना। एग्जाम डेट देख लेने जी। ठीक है जी, ये पढ़ लेने जी। अनफिल्ड वैकेंसीज in case a vacancy remains unfilled on account of disqualification of selected candidates in medical examination character and antecedents verification of education reservation candidates or due to non-joining of selected candidates or account of any other reason after the above mentioned process, such vacancies shall be carried forward for next selection। भी जड़ियाँ भी खाली रहेंगी अगली सिलेक्शन वास्ते लेके जाएंगे। ठीक है, हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है जी है जी, एंड वुड वी स्टार्ट फंक्शनिंग टू बी हेल्प कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द सेम। मतलब जो नंबर है जी 10 सुबह 26 जुलाई को 10 बजे चलना स्टार्ट होएगा। तो जोड़े स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, संकल्प बैच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, तुम तैयारी कर सकते हो। तो जी साडी किताब है जी तुम ओबवियसली फॉलो कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं, रिव्यूज़ देख रहे हैं, तुम चैनल पर जाओ, विजिट करो, पिछले 4-5 वीडियोज़ देखो, थोड़ा पता चलेगा कि फीडबैक है। ग्रुप ज्वाइन करो टेलीग्राम का, थोड़ा उत्ते पता चलेगा। तुम खुद परचेज करोगे, थोड़ा पता चलेगा कि असी 500-600 रुपये के या 650 रुपये के की चीज़ थोड़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो संकल्प बैच के साडी बुक फ्री है। तो होर कोई भी क्वेरी होगी तो तुम प्लीज़ एक बार कमेंट करके दसना, असी कोशिश करांगे थोड़ा हेल्प करने की। फिलहाल की घड़ी के लिए इन्ना ही। दिस इज यूजुअल साइनिंग ऑफ बाय, ऑल द बेस्ट।